Good morning, students. Today we are going to see about boiling point and elevation of boiling point. Let us move to the topic. So first of all, we will see the definition for boiling point. Boiling point is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Boiling point यानी क्या होता है कि vapor pressure of the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. So this is the definition. Again we can go for the definition. Boiling point may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Then boiling point is a characteristic property of the liquids and is criteria to check the purity of the liquids. यानी बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या पता चलता है व्हाई वी टेक आउट द बॉइलिंग पॉइंट, हमें पर्टिकुलर सॉल्वेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट है ये पता चलता है. ठीक है. इट इंक्रीजेस विथ एक्सटर्नल प्रेशर. लिक्विड्स हैविंग ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. अगर उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा. Now elevation of boiling point. It is known that liquid boils only when its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है. So when non-volatile solute is added to the solvent, then the vapor pressure is lowered. ये हमने Raoult's law में देखा है कि जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी जो कि वोलेटाइल नहीं है, जो कि डायरेक्ट उसकी भाप नहीं बनती है, तो सारे मोस्टली जो सोल्यूट्स है एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स लाइक कैम्फर, नैफ्थलीन, वही वोलेटाइल सोल्यूट्स हम ले सकते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. नहीं तो मोस्टली ऑल दी सब्सटेंसेस आर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड व्हेन इट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, जो कि हमने पहले ही देखा है. प्योर सॉल्वेंट से जब सॉल्वेंट सोल्यूशन बनता है, और सोल्यूशन कब बनता है स्टूडेंट्स? व्हेन वी ऐड अ सोल्यूट इन दैट. So and if it is a non-volatile solute, then the lowering of vapor pressure takes place. So here we are now we are talking about boiling point. So in order to boil the solution, the temperature has to be raised. Boiling अगर हमको करना है, हमको अगर temperature at which vapor pressure और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्विलिब्रियम करना है, तो हमको उसको टेम्परेचर रेज करने की ज़रूरत है. सो in what we are going to do, then let us see what happens when these things, when we take about boiling or when we talk about boiling. So why the term called as elevation of boiling point comes under our mind. Okay, why there is a thing like called as lowering of vapor pressure, thing like called as elevation of boiling point, osmosis or freezing point, depression in the froth. Why these terms depression, elevation, osmosis or lowering? This is all caused due to what? Because this is a colligative property and it is already directly proportional to the number of solute particles, and number of solute particles is nothing but a concentration. ओके अगर कोई सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कम ज़्यादा होती है तो हमें ये सब चीज़ें देखने मिलती है. तो हम आज का जो टॉपिक है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो क्यों होता है वो देखेंगे. यानी हमें सीधी सीधी बात है कि सॉल्वेंट में अगर हम सोल्यूट डालते हैं, ओके, और हम उसको बॉइलिंग करते हैं, तो व्हाट इज़ द कंडीशन, हाउ इट इज़ रेज्ड, ये आज हमने देखना है. और हमने पहले ही बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखी है कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of the solution becomes equal to the atmospheric pressure. Okay, so when the liquid is heated, the vapor pressure goes on increasing. क्या होता है अगर कोई लिक्विड को हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर गोज ऑन इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट रीचेस टू द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. दोनों का इक्विलिब्रियम होता है तभी जाके हमें बॉइलिंग पॉइंट मिलता है, या तो फिर उस जो सॉल्यूशन है उसको बॉइलिंग शुरू होता है.
As a result, the molecules that escaping in the atmosphere in the form of gas and the state changes from liquid to gases. ठीक है, तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल स्टार्ट एस्केपिंग. अब जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, जब वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन एटमॉस्फेयर इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है, तो हमें क्या मिलता है, वो चीजें कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में एस्केप होने की, यानी भाप की थ्रू, ओके, वेपर्स के थ्रू एस्केप होने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एंड द स्टेट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू द प्योर. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखे कि हमने कोई प्योर सॉल्वेंट लिया है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो प्योर सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है, so what is happening, some non volatile solute is added to that and the vapor pressure decreases as discussed previously. Evidently more heat is required to reach the pressure to atmospheric pressure. ठीक है, वेपर प्रेशर कम होता है लेकिन ज्यादा हीट लगती है ना, हीट ज्यादा लगती है क्योंकि उसमें हमने सोल्यूट डाला है. ठीक है, वेपर प्रेशर लोअरिंग हो रहा है बट टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना है क्योंकि हमको उतनी भाप बनानी है, उतना हमको वो जो वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने के लिए हमें क्या मात्रा बढ़ा रही है, हम टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सो इन अदर वर्ड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स हायर. और ये कारण है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, वो प्योर सॉल्वेंट से ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा. एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज व्हाट, एलिवेशन ऑफ boiling point. This phenomena is called what, students? It is called as elevation of boiling point. So in this also you can see the graph is there. The graph has been just plotted against vapor pressure and temperature against versus vapor pressure, where this first of all we have taken T0 as the temperature of the pure solvent and temperature of the solution. Okay, we have taken like this, and then we have raised this, this is A to B, how much time is required, and this C to D, that is the elevation, how it is, क्यों इतना टेम्परेचर लग रहा है. अगर आप देखते होगे T0 से ज़्यादा TS का टेम्परेचर को हमको, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन हमको ज़्यादा रहता है, लगता है. ठीक है, और यही फिनोमिना जो डिफरेंस आएगा वो क्या बोलेंगे हमने, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. अगेन वी विल एक्सप्लेन. यहाँ पे आप देख रहे हो इन द ग्राफ शोन अबोव वी कैन सी द चेंज इन द वेपर प्रेशर of a pure solvent and a solution with increase in temperature. वही जो प्रीवियसली जैसा डायग्राम था, इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा क्लैरिफाइड डायग्राम है. एंड द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन विल अटेन द कंटेन ऑफ कंडीशन ऑफ बॉइलिंग व्हेन देयर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. सो वी कैन सी दैट द प्योर सॉल्वेंट अटेन्स दिस कंडीशन एट अ टेम्परेचर. अब दोनों का भी बॉइलिंग तो होना ही है ना, दोनों का बॉइलिंग होना है, यानी हम इसका भी बॉइलिंग ले रहे हैं, किसका, प्योर सॉल्वेंट का, और टीबी यानी जो टीबी भी देखो T0B यानी प्योर सॉल्वेंट का होता है और TB यानी सॉल्यूशन का होता है. या तो हम ऐसे भी ले सकते हैं T0 ये प्योर सॉल्वेंट का और TS है ये हमारा सॉल्यूशन का. दोनों में से कोई भी हम लोग, ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई हैव टेकन इट, दैट इज T0B ये प्योर सॉल्वेंट का है. तो फिर हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, that is the temperature at which vapor pressure is equal to the atmospheric pressure for pure solvent, and same will be the case of TB. Okay, so we can write this is the elevation, and del TB is nothing but the elevation, the difference of this, the temperature of the solution of boiling point and the temperature of the solvent of the boiling point. It is given like this. Okay, this pressure of temperature sample needs to be increased by small amount equal to del TB. थोड़ा सा हम उसको increase करेंगे. ठीक है, so इन दोनों का, here the value of del TB is known as elevation in boiling point.
द वैल्यू ऑफ डेल टी बी फॉर अ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ, ऑब्वियसली जो है कि डेल टी बी या टी ऑफ अ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, जो भी एलिवेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि पहले सॉल्वेंट ले रहे हैं फिर हम उसमें सोल्यूट डाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ओके, सो व्हाट यू गेट सोल्यूशन, एंड दिस सोल्यूशन क्यों हो रहा है, कौन सा फैक्टर मायने रख रहा है, दैट इज नथिंग बट द solute. So it has been shown experimentally that elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solute in a solution. That is del P is directly proportional to, that is molar concentration of that solute in the solution. यानी ये क्या है, solute, ये सोल्यूट पे ही डिपेंड है, जितना डालोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, हाई हीट लगेगा, तो हमको बॉइलिंग भी तो हायर होगा ना हमारा, लाइकवाइज। सो डेल टी बी इज इक्वल टू के बी m. So kb is nothing but a constant. Now what, dear students, we are going to call it as T is the change in the boiling point of the solvent. Okay, T is the change in the boiling point. kb is the molar boiling point elevation constant, या इसको इवोल्यूस्की कांस्टेंट भी बोलते हैं, हम लोग आगे के डेरिवेशन में देखेंगे. m is the molar concentration of the solute in the solution. So in this way, students, the elevation of boiling point is directly proportional to m, and it has been equalized with the constant called as kb, that is a molar elevation constant. ठीक है, let us move further. Here the molality यहाँ चाहिए, not molarity, यहाँ पे molality चाहिए, molality. Molality is the number of moles of solute dissolved in 1 kg of the solvent. Okay, यहाँ पे क्या चाहिए, molality, that is m. Okay, so the number of moles in 1 kg of the solvent, the constant of proportional is kb, is called as boiling elevation constant. The unit of this Iwulski constant is kg mole per inverse. Now molality is equal to m is equal to mass of solute in kg divided by molar mass of the solute in kg mole per inverse मोल पर इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी. तो ऐसा हमको दिया गया है, ये मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, और फिर दोनों का मास ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये क्या है, सोल्यूशन, ये सोल्यूट है, ये सोल्यूशन है. अब सोल्यूशन किसका किसका है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सोल्यूशन. सो इन दिस वे वी हैव डिनोटेड दैट W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1. अब ये जो है हम इसमें लिख सकते हैं सब्सटीट्यूटिंग दिस इक्वेशन, कैसे, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम. तो अभी m हमको मालूम हो गया क्या है, तो वी कैन पुट द वैल्यू हियर एंड दिस इज द के बी. इन दिस वे वी कैन राइट द डेल टी बी. ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख भी सकते हैं, ऐसा यहाँ पे दे के भी है, यहाँ पे कि डेल टी बी इज इक्वल टू के बी बाय एम. नाउ वी नो दैट m is nothing but the molality, so molality is nothing but the number of solute divided by the, so in this way we can write this relationship. Okay, and we can take out the, and this is Iwulski constant. What kb is the Iwulski constant. ठीक है, so हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, और इस प्रकार उसको दिया गया है. सो ये जो है यहाँ पे शिफ्ट होता है, और ये यहाँ पे, और ये कांस्टेंट जनरली देके ही रहता है. ठीक है, और फर्दर स्टूडेंट्स, इसको, ये सबसे इजी तरीका है, इसको दो तरीके से पूछा जा सकता है. ये तो हमारा बहुत डायरेक्ट मेथड है. दूसरा मेथड है हमारा क्लॉसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, एंड इट कैन बी रिटर्न फॉर द वेपर इक्विलिब्रियम. हम लोग इसको देखेंगे. सो ये वाला हमने अपने बुक से लिया है, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ P0 बाय PS. P0 क्या था बच्चों, याद है आप लोगों को, डू यू रिमेंबर व्हाट वी हैव स्टडीड इट इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट व्हाट इज P0. P0 स्टैंड्स फॉर द
vapor pressure of a pure solvent, and this is for the solution. Okay, that is equal to del HV by R is gas constant. ठीक है, del HV is nothing but the latent heat of vaporization, which is given by 1 by T0 minus 1 by Ts. Now you know T0 is what we have taken in this slide. In this previous slide, we have taken it as T0 by Ts. That T0 stands for the that is pure solvent, temperature at pure solvent, boiling point. The temperature is taken for the pure solvent and the temperature taken for the solution. So del HV by R is equal to, if we just 1 by T0 minus 1 by Ts, then cross multiplication Ts minus T0 by T0 into Ts. So this is the what equation arise, and then del HV divided by R del TB. Okay, now this is del TB means what, एलिवेशन कांस्टेंट, दोनों का डिफरेंस है. ऑब्वियसली मैंने पहले ही कहा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, जो टेम्परेचर बॉइल करने के लिए, ठीक है, द टेम्परेचर बॉइल करने से सोल्यूशन का उसको ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि हमारा उसमें सोल्यूट एडेड है, तो हमको उसको बॉइल करने के लिए टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉर बॉइलिंग विल रिक्वायर मोर. सो ऑब्वियसली Ts माइनस T0 रिलेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि हम एलिवेट कर रहे हैं उसको. सो T0 बाई Ts, इन दिस वे वी कैन राइट इट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. हम राउल्ट्स लॉ के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि लोअरिंग ऑफ जो प्योर सॉल्वेंट है इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सोल्यूट. इसको लोअरिंग ऑफ दैट सोल्यूशन हमने बहुत उसको कम क्वांटिटी लिया, तो हमने उसको क्या किया, फिर उसको हमने मैथमेटिकल इक्वेशन से 1 माइनस से उसको हमने सब्सट्रैक्ट किया. तो सब्सट्रैक्ट करते समय हमें क्या आएगा, यहाँ पे P0 माइनस PS, यही वाली कंडीशन आएगी, लेकिन हम लोग इस प्रकार इसको डिनोट करेंगे और हम ये क्या होगा, ये जो है हमारा ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. तो क्या आएगा, 1 माइनस था तो यहाँ पे 1 माइनस x2 आ जाएगा, या तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. पुटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेशन 1 माइनस x2 PS बाय P0, ठीक है. अब PS बाय P0 क्या दिया है बच्चों, P0 बाय PS दिया है. P0 बाय PS कितना दिया है, दैट इज डेल HV बाय R डेल TB T0 बाय TS. अभी इसको हमको इन्वर्स करना है, क्योंकि हमारा इक्वेशन कैसा है, PS बाय दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. तो हम उसको उसी तरीके से लिखेंगे, या तो हम उसको क्या करेंगे कि हम उसको इन्वर्स है, इसीलिए इंटीग्रेशन P0 बाय PS है, हम लिख रहे हैं PS बाय P0, तो हम इसको माइनस यहाँ पे साइन दे रहे हैं, ठीक है, वी आर उसको उल्टा कर दिए, सो दैट्स वाई. ओके, सो दिस वी कम टू द कंक्लूजन विद द इक्वेशन 2. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस इज. नाउ सपोज इंटीग्रेशन 1 माइनस x2, इंटीग्रेशन 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस x2 बाई x2 2 बाई 2 माइनस x2. अब ये जो है वो वाला जो है वो फॉर्मूला यूज होता है, nx स्क्वायर बाय n एक्सपोनेंशियल, वो वाला होता है. तो इसमें इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं. एंड इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डायल्यूट, तो x2 इज वेरी स्मॉल एंड हायर पावर निग्लेक्ट, ये सब चीज़ें हम निग्लेक्ट करेंगे. एंड दैट्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस x2, यानी हम सिर्फ इसको ले रहे हैं, इसको हम लोग शून्य में ऐसे नेग्लिजिबल या डायल्यूट सॉल्यूशन में हम इसको वो एक्सपोनेंशियल है ना, वो वाला हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, xn स्क्वायर डिवाइड बाय n, वो वाला जो है इंटीग्रेशन वो वाला यूज कर रहा है. तो इसमें हमने x2 ले लिया. पुटिंग इन इक्वेशन 2, अब वो जो इक्वेशन था हमारा ये, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, x2 ले लेंगे, ठीक है. सो x2 ले लेंगे. अब माइनस x2 बाय माइनस डेल HV बाय डेल TB बाय T0, फिर ये माइनस माइनस कट हो जाएगा. सो व्हाट यू विल गेट, x2 इज इक्वल टू डेल HV बाय R इंटू डेल TB बाय T0. अब ये क्या है, T0 बाय TS, ये हम लोग क्या ले रहे हैं,
एज ए एक्सट्रीम डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कंटिन्यूसली हम प्योर सॉल्वेंट को ही कर रहे हैं. ये क्या है, 0 स्टैंड्स फॉर प्योर सॉल्वेंट टेम्परेचर एंड दिस इज फॉर द सॉल्यूशन, बट वी आर टेकिंग इट एज अ 0, दैट इज T0, यानी प्योर टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट या वाटर का ले रहे हैं. तो हमारा इक्वेशन कैसे डिराइव होगा बच्चों, x2 इज इक्वल टू डेल एच वी बाई आर डेल टी बी एंड T0 स्क्वायर, दैट इज फॉर द प्योर वाटर और प्योर सॉल्वेंट. सो डेल टी बी, अब ये क्या करेंगे, डेल टी बी यहीं पे रखेंगे और एक्स आर टी स्क्वायर, हम ये सब चीज़ें इधर करेंगे और इसको नीचे यहाँ पे लाएंगे. सो हमको ये वाला इक्वेशन अराइज होता है. So further moving to this equation give rise the relation between the elevation of the boiling point with mole fraction of the solution. अभी देखो डायरेक्टली हम लोग रिलेशनशिप की तरफ आ रहे हैं कि डेल टी बी हमको मालूम है क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट है. ठीक है, डेल टी बी हमने पहले ही कहा था कि टी एस बाय T0 डेल टी बी है करके. सो ये रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट है. सो यहाँ पे दिख रहा है. सो इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूनिट इन मोलैलिटी, क्योंकि हम वो केजीज में ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ मोल फ्रैक्शन. सो हम उसको क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन x2 इज इक्वल टू n2 बाय n1 प्लस n2. अब n2 क्या है बच्चों, आप लोगों को बोला था कंपोनेंट, सपोज वी टेक कंपोनेंट a एंड कंपोनेंट b, देन मोल फ्रैक्शन कैसे होगा, Na is equal to Na plus Nb for component A, and for component B क्या होगा, that is the mole fraction of that is Nb divided by Na and Nb if there is a mixture of two, यानी solvent and solute. तो अभी यहाँ पे हम लोग solute ले रहे हैं. ठीक है, तो सोल्यूट कैसे, अभी हम लोग क्या, अभी पूरे डेरिवेशन में हमने देखे डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हमने सोल्यूट को क्या कर दिया, नेग्लिजिबल अमाउंट कर दिया. एंड हमने कौन सा प्राधान्य दिया है, वी हैव कलेक्टेड इट एज N1, यानी हमने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट को वैल्यू दी है. तो हमने इसको क्या किया, N1 एज ए, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन करके, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहता तो बात कोई और होती थी, यहाँ पे फिर N2 आता था. लेकिन हम लोग बहुत क्वांटिटी में सॉल्यूशन बना रहे हैं, एकदम सपोज 1 ग्राम में 100 ml पानी डाल के हम वो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं. तो हमको अमाउंट जो हमने सॉल्यूट की डाली है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ले रहे हैं बच्चों, इसलिए उसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, सो x2 इज इक्वल टू N2 बाय N1. लेट M and M आर द मॉलिक्यूलर weight of the solvent and solute respectively, and W and W are the weight of the solvent and solute. Hence number of moles of solvent is N1 is equal to W by बड़ा जो है that is weight of the solvent and that is molar mass of the solvent. ये weight of the solute and molar mass of the solute. So in this way X2 can be denoted by Wm by the small w for solute, बड़ा वाला molecular mass for solvent, and this weight of the solvent and molecular mass of the solute. So putting this equation, what you come to rise to this equation. ठीक है, जो कि हमने x2 में डाला है. Now del TB is equal to RT0 square by del HV, एंड हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये जो है m उसको डिवाइड कर रहे हैं डेल एच वी, क्योंकि हमको ये पता है कि एल वी इज द लैटेंट, डेल एच वी बाय द मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट इज नथिंग बट लैटेंट हीट वेपराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट. सो हमने उसको क्या किया, एल वी में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, सो इफ द सॉल्वेंट इज टेकन इन 1000 ग्राम देन W बाय M इज इक्वल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्वेंट. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर इसको पूरी तरीके से हमने मोलैलिटी में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स. ठीक है, जो वेट ऑफ द सोल्यूट है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, और जो है मास ऑफ द सोल्यूट है, ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वेट ऑफ द सॉल्वेंट टेकन इज 100 ग्राम्स, देन द W बाय स्मॉल w, दैट सोल्यूट इज इक्वल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी इक्वल कर दिया उसको, और इस प्रकार ये हमारा रिलेशनशिप ये हो गया. सो RT0 स्क्वायर दैट इज द temperature of the solvent and that is latent heat is constant quantity represented by Kb. अब इस चीज को हमने क्या किया, पूरी तरीके से कांस्टेंट कर दिया, and hence what we derive
the elevation constant. In this way also we can derive the Kb is directly proportional to the molality of that solvent. Okay. सो इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं Kb इज इक्वल की, और इसको हमने पूरी तरीके से उसको छोटा कर दिया है. वी हैव जस्ट नेग्लिजिबल. अब देखो, इफ m इज इक्वल टू 1 एंड del Tb इज इक्वल टू Kb, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी. अगर हमने इसको 1 लिया तो मोलार एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम उसको यूनिटी में लेके जाएंगे. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन राइट द डेफिनेशन लाइक दिस ऑल्सो. ठीक है. एंड वी कैन हैव, इफ इतने सारे पैरामीटर्स दिए, कांस्टेंट दिया, टेम्परेचर दिया, लैटेंट हीट है, वेट ऑफ द सोल्यूट है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट है, तो हम एक तो डेल टी भी निकालना, हमारे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं. और इसी बेस्ड पे हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. वी आर हैविंग एम्पल ऑफ सच problems, numericals based on this formula for the elevation of boiling. Now let us see one of the another experiment, that is determination of elevation in boiling point. किस प्रकार हम निकाल सकते हैं. और इस जो डायग्राम आप देख रहे हो वो है कॉर्टेलेस apparatus. एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिटरमाइंड आइदर बाय लैंड्सबर्ग और कॉर्टेलेस मेथड. अमंग द कॉर्टेलेस मेथड दिस इज डिस्कस्ड, यानी आप लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है ये जो है थर्मामीटर लगा हुआ है. ठीक है. यहाँ पे है पीसेस ऑफ पोरस स्पॉट पीसेस. ठीक है. इन्वर्टेड फनल है, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रीम ऑफ वेपर ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब है, और यहाँ पे कंडेंसर लगा है कि टेम्परेचर मेंटेन हो करके. तो हम लोग ये अपैरेटस से हम लोग क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. एक्सपेरिमेंट डिटरमिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम किस प्रकार निकाल सकते हैं. तो सॉल्वेंट एंड क्या सोल्यूशन का निकालना है. तो पहले प्योर सॉल्वेंट का हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे. ठीक है. यहाँ पे अगर हमने प्योर सॉल्वेंट निकाला है, रखा है, ये जो फनल रखा है, तो इसके जो अगर हीट किया तो इसके टेम्परेचर से हमको बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द वेपर प्रेशर एंड द एटमॉस्फेयर इक्वल हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा किसका, सॉल्वेंट का. उसी तरीके से अगर हमने इसमें थोड़े से ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डाल दिए तो ये जो है हम सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन का क्या होगा, बॉयल हो जाएगा, इसका टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा और ये नोट हो जाएगा. ठीक है. तो इस प्रकार हमको क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन भी मिलेगा स्टूडेंट्स. ठीक है. सो यही वो है, दैट इज T0 by Ts, एंड इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन. ठीक है. सो न्यूमेरिकल दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर रेस्ट इन बॉइलिंग पॉइंट बाय 0.98 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है. तो हमको क्या करना है, छोटा m निकालना है. मोलार एलिवेशन कांस्टेंट दैट इज Kb इज 0.52 डिग्री मोलार. सो क्या क्या दिया है बच्चों, दैट इज स्मॉल वेट ऑफ द सब्सटेंस दिया है, दैट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम, यानी बड़ा वाला वेट जो है सॉल्वेंट का भी दिया है. ठीक है. इबुलिस्की कांस्टेंट भी दिया है, एलिवेशन कांस्टेंट. देन डेल Tb दैट इज टेम्परेचर भी दिया है, इनका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो भी दिया है, एंड 98 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी हमको क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है. तो पुट द वैल्यूज हियर, यू विल गेट दी calculate the molecular weight of the substance. In this way you can see the numericals. यहाँ भी आपको calculate the boiling point of the solution containing 4650 gram of camphor dissolved in 3.1 gram of acetone. boiling point देके है. so given क्या क्या है, that is small w. ठीक है. small उसका मास भी दिया है हमको, बड़ा वाला वेट भी दिया है. ठीक है. कितना दिया है, 31.4 ग्राम, और इबुलिस्की कांस्टेंट हमको दिया. तो हमको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, यानी Ts जो है हमको निकालना है. Ts हमको निकालना है. अब Ts निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि
जो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डेल टी बी बाय ये जो है क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस इन द एलिवेशन कांस्टेंट देखेंगे तो हमारा डेल टी बी मिलेगा, ठीक है। अब डिफरेंस इन द एलिवेशन कांस्टेंट हमको मालूम है टी एस बाई टी ज़ीरो, तो कितना दिया हुआ है, सॉल्वेंट का कितना दिया है बच्चों 56.3. इन दिस वे वी कैन टेक आउट द temperature of the solution. So dear students, in this way we can derive the numericals for the elevation of boiling point, which is directly proportional to the molality. Okay. So in the next we will see the depression of freezing point. Thank you so much.